بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج جو میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں بلیک مون کی، یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی ہماری، اور اس کے بعد لاسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی اور یہ ناول کمپلیٹ ہو ہی گیا ہے، فائنلی ہونے ہی والا ہے۔ تو کافی انٹرسٹنگ رہا ہے یہ جو ہمارا بلیک مون کا سفر رہا ہے، تو آپ لوگ بھی سنیے اور پھر آپ لوگ فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے کریں، پتا تو چلے نا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ فیڈ بیک ہی نہیں دیتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا، اور موٹیویشن اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے، مطلب پھر ایسا فیل ہونے لگتا ہے نا کہ لوگوں کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس ناول میں، تو ہم پھر ریڈ ہی نہیں کریں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ریڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فیڈ بیک تھوڑا سا تو لازمی دیا کریں، کوئی لائک کر دیا کریں، کوئی کامنٹ کر دیا کریں، کوئی آگے شیئر کر دیا کریں۔ اور چلیں اب پھر بنا وقت ضائع کیے اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ شروع کر لیتے ہیں۔ وہ آفس جانے کے بجائے فارم ہاؤس آیا تھا۔ گھوڑے پہ بیٹھتے گھوڑے کے لگام کو جھٹکا دیتے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ آنکھوں میں گہری خاموشی نظر آتی تھی۔ مسکراہٹ جو پچھلے کچھ ماہ سے اس کے ہونٹوں پہ نظر آنا شروع ہوئی تھی وہ سمٹ گئی تھی۔ گھوڑا تیز ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں دو عورتیں آئی تھیں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مریم اس کی پہلی بیوی جو ہر وقت اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ مریم سے شادی اس کی 22 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی میں تھا، ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ جس کے ہاں جاب کرتا تھا اس کی بیٹی تھی۔ مریم کے بابا کو آسام اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی آسام سے کر دی اور مریم کو بھی آسام سے عشق ہو گیا تھا۔ مریم ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، سو آسام کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اس سے شادی میں۔ لیکن اس کے بعد آسام نے مریم کے بابا کے پاس کام کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری جگہ جاب مشکل سے ہی ملی تھی لیکن مل گئی۔ پڑھائی مکمل ہونے تک وہ کچھ سیونگ کر چکا تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ اسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں 4 سال لگے تھے۔ اس دوران اللہ نے انہیں آبان جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ مریم، آبان اور آسام چھوٹی سی فیملی بہت خوش تھے۔ آبان 4 سال کا تھا جب مریم ایک بار پھر ایکسپیکٹ کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھے، بس ایک ننھی پری کی کمی تھی جو یقیناً آنے والی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی مریم ایک بار پھر ایکسپیکٹ کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھے، بس ایک ننھی پری کی کمی تھی جو یقیناً آنے والی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی ڈلیوری کے دوران ایسے کمپلیکشن ہوئے کہ مریم اپنی جان ہار گئی۔ وہ چھوٹی سی بچی بھی کچھ ہی گھنٹے زندہ رہ سکی۔ آسام کی زندگی ایک بار پھر اجڑ گئی تھی۔ اب کی بار اسے تھوڑا وقت لگا تھا خود کو سنبھالنے میں۔ لیکن آبان، وہ ماں کو کیسے بھولتا؟ اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن آسام نے ہمت نہیں ہاری۔ 28 سال کی عمر میں آسام نے دوبارہ اس مینشن میں قدم رکھا۔ اب اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اسے اس کی توجہ کی ضرورت تھی جو آسام نے ذرا مختلف طریقے سے دینا شروع کی۔ وہ اسے خود گھر میں پڑھاتا تھا، اسے اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی تھی، ایک مضبوط انسان بنانا تھا۔ وہ اسے رونے نہیں دیتا تھا، اسے اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہے سب سکھایا تھا۔ پہلے پہلے وہ بہت پریشان ہو جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگا۔ اسے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ آسام اسے پیار نہیں کرتا تھا، بس وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ کبھی اسے پیار سے گلے نہیں لگایا۔ گھوڑا ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا، لگامیں مضبوطی سے تھامے وہ تیر کی تیزی سے فارم ہاؤس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ اشوی اس سے بہت مختلف تھی۔ اسے آسام کو خود ٹریٹ کرنا پڑتا تھا، وہ خود اس کے قریب جاتا تھا۔ اشوی اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اور اس کی ایک بڑی وجہ مہابیر تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس نے آبان کے لیے کئی بیبی سیٹر بھی رکھے لیکن وہ کچھ دنوں میں ہی آسام کے رویے سے تنگ آ جاتی تھی۔ آبان تنگ نہیں کرتا تھا، آسام چاہتا تھا اسے کسی کی عادت نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کوئی بھی آبان سے محبت سے بات نہ کرے کہ بعد میں اسے مشکل ہو۔ پھر اس نے دوسری شادی کا سوچا، لیکن آبان کے لیے سٹیپ مدر۔ آبان کو سکھایا کہ سٹیپ مدر کبھی بھی ریئل مدر جیسا پیار نہیں کرتی، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں۔ وہ اسے پہلے ہی اشوے سے دور کر رہا تھا تاکہ بعد میں آبان کو اس کی بھی عادت نہ پڑے۔ لیکن یہاں اشوے نے اسے غلط ثابت کیا تھا۔ اس کا بیہیویئر اچھا تھا آبان کے ساتھ۔ شروع میں وہ الجھتی تھی لیکن پھر اسے وہ بچہ اچھا لگنے لگا، یوں ان کی دوستی ہو گئی۔ اشوی اس کی دوسری نہیں پہلی بیوی تھی، یہ بات اشوی خود نہیں جانتی تھی۔ آسام نے دوبارہ گھر واپس نہ جانے کا فیصلہ لیا تھا۔ وہ اپنے فیصلوں سے پھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر اشوی اس کے قریب آنے سے تنگ ہوتی تھی تو وہ اسے دور چلا جائے گا۔ آگ آگ ماما، آگ بچاؤ بابا، ماما بابا۔ وہ کمرے میں تھی جب باہر سے اسے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی۔ کچن کو چاروں طرف سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ماما، میرے کپڑے جل رہے ہیں۔ آسام دور تھا جو آسام نے اسٹڈی روم میں سنا تھا۔
मामा, आबान को बचा लें। बाबा, सांस नहीं ले रहा आबान। आबान का जिस्म जल रहा था। वो भागता हुआ बाहर निकला। मामा की जान, वो सिसकी। वो वहां अश्वे दूर से ही दहशतजदा आंखों से किचन की तरफ देख रही थी। आसाम दौड़ता हुआ आगे गया था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। आबान, आग फलांगते वो अंदर आ गया। आबान, मेरा बेटा। लेकिन वो नन्हा वजूद जलकर खाकसर हो चुका था। आसाम की दिल दहला देने वाली चीख ने मेंशन के दरों दीवार हिला दिए थे। वो हड़बड़ा के उठी। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। आबान दूसरी तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वो अकेली सो रही थी। या अल्लाह, ये ख्वाब था। तौबा। उफ, सच में दिल हिल के रह गया। क्या करते हैं राइटर्स। तौबा। फिर आबान के रूम की तरफ आते वो बहुत खौफजदा थी। दिल कांप रहा था। दरवाजा खोल के अंदर आई। आबान सो रहा था। वो भी पास लेट गई। इस वक्त वो और आबान घर में अकेले थे। सोच के ही रोंगटे खड़े हुए। उसके पास मोबाइल भी नहीं था कि वो आसाम से राब्ता करती। होल उठ रहे थे। भाई, क्या आप अपना मोबाइल देंगे? सुबह सुबह अश्वे गार्ड के पास खड़ी थी। जी बेबी जी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के दिया। इसमें आसाम का नंबर है। जी जी, दे मैं मिला देता हूँ। उससे मोबाइल लिया, फिर आसाम को कॉल की। वो जिम में था। हाँ बोलो, बोलते सांस के साथ जवाब दिया। सर, वो मुझे दो। अश्विन ने उससे मोबाइल लिया। आसाम, सॉरी, प्लीज घर आ जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले। प्लीज, सॉरी, तेजी से कहा, कहीं फोन ही बंद ना कर दे। आपका मोबाइल स्टडी रूम में राइटिंग टेबल के थर्ड ड्रॉर में रखा है, निकाल लें। दोबारा गार्ड से मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है। ठक से फोन बंद। हेलो, आसाम। अश्वे बस उसे पुकारती रह गई, फिर उसे मोबाइल देके वापस कमरे में आ गई। ठीक है, नहीं तो ना सही। स्टडी रूम का दरवाजा खोलते अपना मोबाइल निकाला। मैं अकेली रह सकती हूँ। फिलहाल वो जज्बात में थी। उसे नहीं पता था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। पूरा हफ्ता उसने आबान के साथ वहां अकेले गुजारा था और 7वें दिन वहां दानिया आई थी। उसे जब पता चला कि आसाम वहां नहीं है, उसकी खुशी की इंतहा ना रही। कब से नहीं है? मुस्कुराहट आंखों में नजर आती थी। अश्वे परेशान थी भी और नहीं भी थी। ग्रोसरी का सामान गार्ड रोज ला देता था। हर चीज वैसे ही चल रही थी जैसे उसकी मौजूदगी में थी। बस एक वो खुद नहीं था। कुछ दिन से अश्वे को दानिया का आना भी अच्छा नहीं लगा था। ओके, चलें, आप परेशान ना हो, मैं भी यही हूँ। उसे मकारी से देखा। चलो फिर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। वह मुश्किल उसे बर्दाश्त कर रही थी। उसके जाने के बाद अश्विन ने रोटी बनाई थी। मगरिब का वक्त था। मामा, बाबा कब आएंगे? आबान बाहर था, अभी अभी अंदर आया। मुझे क्या पता बेटा, आप खुद बात कर लें। ऐसे बात करने में मजा नहीं आता ना मामा। मैंने उनसे कहा था वो आ जाएं। उसकी एक बार आसाम से बात हुई थी, सरसरी सी। आ जाएंगे, उन्हें काम है ना बहुत, इस वजह से। हर बार की तरह का जवाब। ओके। वो खामोशी से बैठ गया। कर भी क्या सकता था। फाइल सारी यहाँ रखो और मीटिंग रखो। मैनेजर को ऑर्डर देते अपना लैपटॉप बंद किया। जी सर, राजा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। ओके, मुझे उसकी डिटेल्स भी भेज दो। इन दिनों उसका फुल टाइम सिर्फ बिजनेस के लिए था। वो वहीं इसी शहर में था, लेकिन अपनी फैमिली से दूर था। वो हमेशा अश्वे को सजा देता आया था। दर हकीकत सजा का हकदार तो वो खुद था। इतनी मसरूफियत में भी वो अश्वे को अपने जहन से नहीं निकाल पाया था। शायद वो उससे मोहब्बत वो इस शायद से आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। उसे मोहब्बत से खौफ नहीं था। असल खौफ इस बात का था कि वो अश्वे को जब बताएगा तो क्या होगा। वो उसकी बीवी थी, उससे मोहब्बत करना उसका हक था। लेकिन वो उसके दिल को चाह के भी अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता था। इसीलिए उसका मंजर से हट जाना शायद दोनों के लिए बेहतर था। लेकिन इस बेहतरी में उसे खुद तकलीफ हो रही थी। सारी सारी रात जागने के बाद सुबह पागलों की तरह काम करना और थकावट के बावजूद फिर वही सारी रात जागना। कभी जो उसकी आंख लग जाए। सर, सब मीटिंग रूम में जमा हो चुके हैं। मैनेजर दरवाजा नॉक करके अंदर आया। ओके, तुम चलो, मैं आता हूँ। वो अपना मोबाइल और फाइल उठाता उस मैनेजर के साथ मीटिंग रूम में आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको पता है हम यहाँ किस मकसद के लिए जमा हुए हैं? जी सर। ओके, गुड। तो चले हम डिस्कस करते हैं। जो रहीम कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि अगर हम उसे हासिल कर लेते हैं तो हम लोग बिजनेस की दुनिया में टॉप लिस्ट के स्टार्स में आ जाएंगे, जिससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी और हमारा मार्केटिंग लेवल भी अप होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी सर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ हम सब दिल लगा के काम करें। अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन काम के अलावा मैं किसी और किस्म की एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? जी। एक ने हाथ खड़ा किया। फिर मीटिंग कुछ देर ही और चली थी। खत्म करके वो अभी दरवाजा खोल रहा था, मोबाइल बजा।
मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज आ जाएं। अश्वे थी, आवाज भी इतनी धीमी थी कि वह मुश्किल समझ पाया। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे लगता है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। डायरेक्ट मुद्दे पे आई। आसान के लबों ने मुस्कुराहट को छुआ। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रेस्ट करें फिर, कान खुजाया। प्लीज, मेरी तबीयत सच में खराब है आसाम। उसे लगा वो जान छुड़वा रहा है। ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ। कॉल बंद कर दी। मुझे आपकी जरूरत है। दोबारा कॉल की। वो खामोश हो गया। अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करें। मुझे नहीं करना रेस्ट। आबान आपको मिस कर रहा है। ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा। बल्कि अभी मैं रफाकत को भेजता हूँ, आप उसे तैयार कर दें, वो उसे पिक कर लेगा। अच्छा, उससे कुछ कहा ही नहीं गया। वो उसे बता ही नहीं सकी कि आबान से ज्यादा वो उसे मिस कर रही थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसने भी फोन बंद कर दिया। आबान उसके कमरे की तरफ आई। जी मामा, वो होमवर्क कर रहा था जो अश्विन ने दिया था। बाबा बुला रहे हैं आपको, तैयार हो जाएं। ठीक है, वो खुशी से उठा। आप तैयार कर देंगी आबान को? आबान खुश हो तो काम नहीं करता। अब ये कहाँ से सीखा है हमारे प्यारे आबान ने? कहीं से नहीं, बस मैं इंटेलिजेंट हूं ना, तो खुद ही दिमाग में आ जाता है। वो हंसी, फिर उसे तैयार होने में मदद दी। आप भी तैयार हो जाए ना। नहीं, उन्होंने बस आपको बुलाया है। आप भी साथ चलें मामा, ऐसे मजा नहीं आएगा। मेरी तबीयत नहीं ठीक ना। अब बाबा को देखेंगी तो ठीक हो जाएंगी। वही तो वजह है तबीयत खराबी की, बस सोचा। आए मामा, अब मैं हेल्प करता हूँ आपकी तैयार होने में। जबरदस्ती उसे खींचते हुए साथ लाया। उस दिन बाबा ने कैसे हेल्प की थी मुझे बताएं। मजे से वार्डरोब खोला। आबान, अश्विन का दिमाग सनसना उठा। जी मामा, वो बाहर निकला। आप अकेले जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही, ठीक है? उसे प्यार से समझाया। मामा क्यों? बाबा को मिस नहीं करती हैं आप? वो उदास हुआ। करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको ही बुलाया है, और फिर ऑफिस में इतने सारे मर्द होंगे, आपके बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा, सोचते हुए बोला। ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगा, वो आपके लिए भी टाइम निकालें। घर नहीं आना तो ना आए, किसी होटल। आप कुछ नहीं कहेंगे। देखें, बाहर रफाकत अंकल आए हैं। गाड़ी के हॉर्न पे मुतवज्जा किया। ठीक है मामा, आप ख्याल रखना अपना। फिर ऊपर होके उसके गाल पे प्यार किया, साथ ही साफ भी किया। उसे आसाम याद आ गया। बहुत सारी चीजों में वो उसकी कॉपी था। जैसे एकदम से अगले बंदे का दिल तोड़ देना, लेकिन फिर दोबारा नॉर्मल रिएक्ट करना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे आसाम की कमी अजियत देती थी। शायद उससे मोहब्बत हो रही थी। अगर आसाम से मोहब्बत हो रही थी तो महावीर से क्या था? आबान जा चुका था। वो अभी से बेड पे बैठी सोच रही थी। महावीर के दिन रखने के लिए उन्होंने बिनिश के घर जाना था, लेकिन इससे पहले भाई और भाभी को भी राजी करना था। ऐसा करने के लिए उन्हें कुतुब खान ने कहा था। वो नहीं चाहते थे कि दुश्मनियां सारी जिंदगी के लिए बन जाएं। पर वर्षा बेगम ने भी कुछ खास एतराज नहीं किया और उनके साथ हमीद साहब के घर चली आईं। रात के वक्त आए थे ताकि हमीद साहब से बात हो सके। आयशा बेगम ने बड़ी मुश्किल से सब्र के घूंट पी रखे थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमीद साहब की वजह से खामोश रहीं। अगले दिन उन्होंने बिनिश के घर जाना था और वो चाहते थे वो लोग भी आए। हमीद साहब ने हामी भर ली थी और आयशा से पूछना किसी ने शायद जरूरी नहीं समझा। बस ये हुआ कि दोनों घरों में जो एक दूरी की दीवार खड़ी थी हिलना शुरू हो चुकी थी। उनके जाने के बाद आयशा बेगम ने हमीद साहब को खूब सुनाई, जैसे आमतौर पर बीवियां शोहरों पे चढ़ाई करती हैं। वो भी कान लपेटे पड़े रहे। फिर आयशा बेगम का रुख रीस की तरफ हुआ, जो अपने कमरे में कोई असाइनमेंट बना रहा था। तुम अगर इज्जत में इंटरेस्टेड हो तो अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं ऐसा होने दूंगी। मेरे जीते जी तुम बाप बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो हांगकांग की तरह उनकी शक्ल देख रहा था। ऐसे मुंह फाड़ के मत देखो, जो कह रही हूँ उसे समझो और अपने दिमाग में बिठा लो। मामा, लेकिन इज्जत में क्या बुराई है? इज्जत में नहीं, इज्जत की माँ में बुराई है। तो शादी इज्जत ने करनी है, उसकी माँ, सॉरी मेरा मतलब फूफो ने तो नहीं करनी। आयशा की घूरी पे अदब से नाम लिया। मैं उस घर से कोई और रिश्ता नहीं बनाना चाहती। उन्होंने मेरी अश्वे के साथ क्या किया था जानते नहीं हो? ठीक है मामा, वो उनसे बहस नहीं कर सकता था, खामोश हो गया। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा, बस आप खुश रहें। मुंह बनाते नजरें दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर मरकूज की। शाबाश, मुझे पता था मेरा बेटा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करेगा। उसे मुस्कुरा के देखते बाहर चली गई। तूफान की तरह आई थी और उसे उसी जद में छोड़ के खुद बाहर चली गई। पता नहीं क्या होगा, ये खानदानी मसले कभी खत्म नहीं होते। अब क्या करूंगा मैं? सर थामते वो परेशान था। उसे इज्जत को सारी सिचुएशन का बता देना चाहिए था। क्या आप मिल सकती हैं अभी? मैसेज किया। अभी इसी वक्त 5 मिनट बाद रिप्लाई आया। हाँ प्लीज। खैरियत है? व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। जी, आप आए तो सही। ओके। रीज अपना लैपटॉप उठाए ऊपर आ गया ताकि मामा को शक ना हो। वो किचन समेट रही थी। कुछ देर में इज्जत भी आ गई। हाँ बोलो, क्या है? उसके उतरे हुए चेहरे को देख के पूछा।
मामा नहीं मान रही हैं, बहुत सख्ती से मना किया है। फिर एकदम से सब मानिक पड़ गया। फिर क्या, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता। और मेरा इज्जत की आंखों में नमी भरने लगी। आपका भी नहीं तोड़ सकता। उसे देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। क्या पता अभी गुस्से में हो, जब गुस्सा खत्म होगा तो फिर बात करना। मुझे नहीं लगता वो मानेगी। उन्हें मसला आपसे नहीं, आपकी मामा से है। और अश्वे की वजह से वो ऐसा नहीं करना चाहती। उनकी बेटी का दिल टूटा है, वो इसीलिए अब वो मेरा तोड़ेंगी। उन्हें नहीं पता कि आप इंटरेस्टेड है मुझ में। उन्हें तो बस ये लगता है कि मैं चाहता हूँ। तो वो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही हैं। उसे बुरा लग रहा था। यार पता नहीं मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तुम उनकी पसंद से कर लो। वो वापस मुड़ गई। रीज ने उसे जाते हुए देखा। पता नहीं क्या होगा हमारा। हाथ हिलाते वो भी वापस आ गया। वो कर भी क्या सकता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो उससे लिपटा। वालेकुम अस्सलाम। असान ने उसे उठाते गाल पे प्यार किया। कैसा है मेरा बेटा, उसे देखते पूछा। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप घर क्यों नहीं आते। ऑफिस में काम होता है ना, इसीलिए। उसे अपनी चेयर पे बिठाया। पहले भी होता था, तब तो घर आते थे। वो पेपर वेट उठा के देख रहा था। पहले कम काम होता था, अब ज्यादा होता है। फिर भी बाबा, ऐसे कौन करता है। मैं। उफ उफ बाबा, सर पे हाथ मारते उसकी तरफ घूमा। आपको पता है मामा कितनी बीमार रहती हैं। उन्हें हर वक्त वॉमिट होती है और वो रोती भी रहती हैं। ये मामा ने सिखा के भेजा है। नहीं, वो मुझे भी नहीं बताती, लेकिन मैं खुद देख लेता हूँ। वो मेरे साथ रूम में सोती हैं, बल्कि जागती हैं। आप घर आ जाएं बस। प्लीज बाबा। अच्छा देखते हैं ना। मोबाइल निकालते अश्विन का नंबर डायल किया। दिल में कुछ कुछ हो रहा था। वाकई वो सच कह रही थी, उसने मजाक समझा था। हेलो। कॉल रिसीव करते आवाज आई। आप साथ क्यों नहीं आई, कुछ समझ नहीं आया तो यही पूछ लिया। आपने बुलाया था। उसकी आवाज भी बदली बदली सी थी, जैसे नसला हुआ हो। हर 2 सेकंड बाद शू शू की आवाज आती। तबीयत ठीक है आपकी। जी। एक लफ्जी जवाब। ओके, फोन बंद कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना। अभी वो घर में अकेली भी होंगी और उनको वॉमिट भी हो रही होगी। उसकी पूरी पूरी कोशिश थी आसाम घर जाए। ओके ठीक है, चलते हैं। वो सामने वाली कुर्सी पे बैठा था। सच में हम साथ चलेंगे। मुस्कुराते दोबारा पूछा। हाँ जी, साथ चलेंगे। वॉलेट में चीजें रखते गाड़ी की चाबी उठाई। चलें। जी बाबा। बाजू फैलाए ताकि वो उसे उतारे। आसाम ने आगे होके उसे उठाया। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके गाल पे होंठ रखे वो केबिन के सामने से गुजर रहा था। लोग काम कर रहे थे, उन्हें देख के मुस्कुराए। क्यों, बाहर निकलते आसाम ने पूछा। क्योंकि आपने मुझे खुद से उठाया है। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको ये खुशी रोज दूंगा। गाड़ी का दरवाजा खोलते उसे बिठाया, फिर खुद खुद दूसरी तरफ से आके खुद बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते उसका रुख आज पूरे 2 हफ्ते बाद घर की तरफ था, वरना वो यहाँ तो ऑफिस में ही रह लेता था या फार्म हाउस चला जाता था। वो स्टडी रूम से नॉवल उठा के बाहर निकली थी। दरवाजा खुला, एक छोटी सी स्टिक अंदर की तरफ लटकी। अश्वे बाहर निकली। दरवाजा खुद बंद हो जाता था, लेकिन इस स्टिक की वजह से वो वहीं अटका रह गया। अश्वे लाउंज में आ गई। पीछे से ताक में बैठी दानिया स्टडी रूम में दाखिल हुई और अपनी तमाम मतलूबा चीजें तलाशी। वो आसाम सामने तो रख नहीं सकता था, इसलिए वो वहां बने बुक्स रैक्स के पीछे एक लॉकर के पास गई, जो फुल सिक्योरिटी में था। पासवर्ड लगाते उसने एहतियात से लॉकर का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वो इतना बड़ा दरवाजा था कि कोई इंसान उसके अंदर जा सकता था। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। साफ सुथरा एक छोटा सा कमरा था, जहाँ छोटी छोटी नंबर्स के हिसाब से अलमारियां बनी हुई थी। वहां भी हर अलमारी का एक कोड था। डायरी निकालते उसने एक अलमारी खोली, जहां फाइल्स रखी थी। उसने तमाम फाइल्स निकाली जो उसे जरूरत थी। 2-3 और अलमारियां भी थीं, जिनके पासवर्ड्स उसे नहीं पता थे, लेकिन उसे जो चाहिए था वो तो मिल गया था। बाहर निकलते उसने दरवाजा बंद किया, फिर स्टडी रूम से निकली, स्टिक उतारी और बाहर आ गई। पीछे से दोबारा दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने ये तमाम पासवर्ड आसाम की शर्ट पे कैमरा लगा के हासिल किए थे। ये काम भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसने ये बहुत पहले कर लिया था। तमाम पासवर्ड हासिल करने के लिए उसने 2 माह लगाए थे। अश्विनी नीचे लाउंज में बैठी नॉवल पढ़ रही थी। आबान अभी तक वापस नहीं आया था। मामा देखें, बाबा वापिस आ गए। वो वहीं सोफे पे नीम तराज थी, अबान का ही इंतजार कर रही थी। आवाज पे सर उठा के देखा तो आसाम दरवाजा बंद कर रहा था। उठ के सीधी हुई। इन कुछ दिनों में वो बिल्कुल कमला सी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। आसाम उसके सामने आके सोफे पे बैठा। वालेकुम अस्सलाम। बालों को कानों के पीछे अड़क से जवाब दिया। पानी। आसाम को इसे एक गिलास की आदत हो गई थी, जो उसे रोज उसके आने पे अशवे देती थी। हाँ सॉरी, मैं लाती हूँ। उठ के किचन की तरफ आई। आसाम बगौर उसे देख रहा था।
तबीयत को क्या हुआ? वापिस आने पे पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही फ्लू हो गया था। आबान तो कह रहा था बहुत बीमार हैं। फिर आबान को देखा। हाँ, मामू बीमार हैं, आपसे नाराज हैं, इसलिए नहीं बता रही। मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े। अश्विन ने उसे घूरा। असाम ने गिलास वापिस पकड़ाते उसे देखा। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आबान कह रहा है। वापिस किचन में चली गई। रोटी बनाऊं? वहीं से पूछा। जी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। फिर वो उठ के चला गया। कुछ देर बाद खाना खाया। अश्विया शाम के सोने के बाद रूम में गई थी। वो उससे नाराज थी, लेकिन शायद वो समझा नहीं था। बात सुने, हमीद साहब नाश्ता कर रहे थे जब आयशा ने कुछ याद आने पे उन्हें मुतवज्जा किया। हाँ, बोलो। चाय का सिप लेते उन्हें देखा। वो, मैं कह रही थी, शाम को जल्दी आ जाना। वो जाहिदा आपा के घर चलेंगे। क्यों? क्या मतलब क्यों? आपको बताया तो था, रीस के लिए उनकी बेटी देखने जाना है। और मैंने भी कुछ कहा था, दो टोक अंदाज में जवाब दिया। आपने जो कुछ कहा था वो मैंने री से पूछा है। वो कहता है जैसा आपका दिल करता है करें। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। झूठ बोला। ऐसा नहीं कह सकता। क्योंकि कुछ नहीं, और जो मैंने कहा है आप बस वैसा ही करें। कोई जरूरत नहीं है किसी और के बारे में कुछ सोचने की। उन्होंने जब किसी की परवाह नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे। बस आप आज जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। ठीक है। फिर शाम को वो खूब अच्छे से तैयार होकर हमीद साहब के साथ जाहिदा की तरफ गई थी। उनकी बेटी नूरुलैन वाकई ही नूर थी, बहुत प्यारी, सुलझी हुई और सोबर सी। आयशा ने एक जताती हुई नजर हमीद साहब पे डाली। देखो यहाँ, इज्जत भला इसके मुकाबले की है। हमीद साहब खामोश हो गए। उन्होंने कुछ वक्त मांगा था सोचने के लिए। वैसे तो उनके अंदाज से लग ही रहा था कि उन्हें कोई एतराज नहीं है, फिर भी मसलहतन वक्त मांगा, कैसे अच्छा नहीं लगता। अलगर्ज रीस का रिश्ता तय हो गया, उसकी मर्जी के बिना। दूसरी तरफ इज्जत दुआओं में मशगूल थी। आसाम जो उसके इंतजार में था अब सोने लगा था। जब वो अंदर आई थी उसके पास लेटने तक कोई हरकत नहीं की। नाराज है? जब वो पास आके लेट गई तो उसे देखा। अश्वे जो समझ रही थी कि वो सो चुका है, मजे से दुपट्टा उतार के साइड पे रख चुकी थी। नहीं, जल्दी से दुपट्टा गले में डाला। आसाम गहरी सांस लेता नजरें फेर गया। ठीक है, सो जाएं। हालांकि वो नाराज लग रही थी। आपको इतने दिन आबान का ख्याल नहीं आया? आबान को तो आया था, लेकिन उसकी मामा का। मरियम से मोहब्बत करते हैं? खशमगी नजरों से देखा। बात तो पूरी सुन ले। नहीं सुननी। मतलब नाराज हैं? वो बस उसे देख रहा था। नहीं हूं नाराज, बल्कि सॉरी। मैंने आपसे। इट्स ओके। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगा। वो उसे स्पेस देना चाहता था। वो खामोश हो गई। लेकिन मैं तो लड़की हूँ। वे इख्तियार फिसला। आसाम के लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट। उसका मतलब समझ गया था। फिर पीछे होकर ड्रॉर से छोटा सा बॉक्स निकाला। ये लें, आपके लिए ली थी। अगर कभी आपका दिल राजी हो तो आप इसे पहन लेना, मैं समझ जाऊंगा। उसने मुश्किल आसान की। आपको पता है, ऐसा सीन निमरा अहमद की एक नॉवल में भी हुआ है, नमल में। इसमें भी वो उसे गिफ्ट देता है और। लेकिन मैंने नॉवल नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही हमारी सिचुएशन के लिहाज से कहा है। हाँ, मैं जानती हूँ। वो आसाम के फैसले से कुछ रिलैक्स हो गई थी। फिर ऐसे ही बातें करते जो कि नॉवलों के मुतल्लिक थी, करते करते अश्वे सो गई। आसाम जागता रहा। दिल मुस्तरिब था, कहीं सुकून नहीं था। री से बातचीत बिल्कुल बंद थी। उसके रिश्ता तय होने के बाद भी उसे बाबा से पता चली थी। उन्हें हमीद साहब ने खुद बताया था शायद। आज रीस की बात भी पक्की कर दी। कुतुब खान नमाज पढ़ के आ रहे थे। वो जो किचन में सालन निकाल रही थी हाथ रुके। उसे लगा शायद सुनने में गलती हुई है। चम्मच छोड़ के बाहर आई और डायरेक्ट पूछा। किसकी बात पक्की हुई है? ये अपने रीस की, हमीद साहब की फूफोजाद बहन की बेटी से। बहुत खूबसूरत बच्ची है, मैंने देखा हुआ है इसे। वो सुकून से बता रहे थे और इज्जत के पांव तले से जमीन धीरे धीरे सरक रही थी। आ, आपको पक्का पता है रीस की? उसे समझ नहीं आया वो कैसे पूछे। हाँ, मुझे खुद हमीद ने बताया है। 2 दिन पहले ही वो लोग मिठाई दे के आए हैं। रीस राजी है? डूबते दिल के साथ पूछा। जाहिर बात है, उसे पूछे बिना तो नहीं हो सकता ना। उस बच्ची को देख के तो कोई भी राजी हो जाए। वो अपनी जोन में थे, इसलिए इज्जत का सफेद पड़ता रंग नहीं देख सके। वो कितनी देर साकी सी वहीं खड़ी रही। फिर पाँव घसीटते किचन में आके कुर्सी पे गिर सी गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ के डोंगे का ढक्कन बंद करे। कितनी देर वहीं बैठी रही, फिर उठ के कमरे में आई और रीस को कॉल की, जो कि उसने पिक ही नहीं की। रीस, मेरी कॉल उठाओ, नहीं तो अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगी। धमकी भरा मैसेज छोड़ा। रीस, जो मोबाइल हाथ में लिए बैठा था, उसे 2 दिन से इंतजार था कि इज्जत उसे कब उसके बारे में पूछेगी और वो उसे कैसे तसल्ली देगा। वो ये तो जानता था कि उससे लड़ेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था वो इस लड़ाई को कैसे संभालेगा। रीस, मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो, प्लीज कॉल पिक करो। दोबारा कॉल भी पिक नहीं हुई तो उसने फिर मैसेज किया। फिर रीस ने खुद कॉल की। हाँ, बोलो। अजनबी सा लहजा।
تم نے کہا تھا تم راضی، اس کے حلق میں الفاظ پھنس گئے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نہیں کر سکا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا، جیسے مرضی، تم بس مجھ سے شادی کرو گے، نہیں تو۔ اسے اپنا مقام بھول گیا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میرے والدین، خاص طور پر میری ماں، راضی نہیں ہو جاتی۔ عزت، اور پلیز آپ خود کو اذیت اذیت بہت چھوٹا لفظ ہے ریز۔ اس وقت میرے جسم میں خون نہیں، درد بہ رہا ہے، اور تم کہتے ہو اذیت نہ دوں؟ پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ میں کروں گی۔ جب تم اپنی مرضی کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ آنسو صاف کرتے خود کو مضبوط کیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ رشتہ توڑ دو۔ میں نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا تو پہلے آپ کے لیے راضی کر لیتا۔ پلیز بات کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم میری بات سمجھو اور دماغ کھول کے سمجھو۔ میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں ریس، کبھی نہیں۔ وہ چیخی۔ جلدی سے اپنے منہ میں دوپٹہ ڈالا کہ شاید آواز یہاں دب جائے، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا وہ آسمان سر پہ اٹھا لے جس پہ بھروسہ کیا تھا۔ وہ کتنی آسانی سے اسے توڑ کے چلا گیا تھا۔ کاش وہ اس درد سے مر جائے، کاش۔ بے تحاشا آنسو تھے جو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آواز دبانے کے لیے اس نے کپڑے کے اوپر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کیسے بتائے کہ اس کا دل ٹوٹا ہے؟ کوئی نہیں تھا اس کا، کوئی بھی نہیں۔ میرے اللہ، پلیز تو میری مدد کرنا، تو راضی ہو جا، باقی خود راضی ہو جائیں گے۔ دل سے دعا نکلی تھی۔ وہ میرا ساتھ نہ دے، اللہ تو میرا ہے نا، تو میرا ساتھ دے نا، اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ بے شک کوئی ساتھ نہ دے، میں پھر بھی اللہ کو مناؤں گی۔ وہ رات عزت پہ قیامت بن کے ٹوٹی تھی، اور وہ رو رہا تھا۔ پہلی بار شاید اپنے ہوش و حواس میں۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ خود بھی نہیں چاہتا کسی اور سے شادی کرنا، لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے راضی کرتا جو پہلے انہی سے ڈسی ہوئی تھی؟ بابا بھی خاموش ہو گئے تھے۔ کون تھا جو ماما کو منا سکتا تھا؟ شاید اشوے۔ ہاں، مجھے اشوے سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ ہیلپ کرے ہماری۔ موبائل پہ اس نے نمبر ڈھونڈا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، فری ہو کے مجھے کال کیجئے گا۔ میسج کیا۔ یہاں میسج پہ ہی بول دو کیا ہیلپ چاہیے۔ کچھ دیر بعد رپلائی آیا۔ آپ کو پتا تو ہوگا میری منگنی کا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں عزت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماما نہیں مان رہی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ماما سے بات کریں، پلیز، ایک آپ ہی ہیں جو انہیں منا سکتی ہیں۔ عزت چاہتی ہے تم سے شادی کرنا؟ جی، وہی تو زیادہ چاہتی ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں بات کروں گی۔ تھینک یو۔ اسے کچھ امید بنی کہ شاید کچھ ہو سکے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ پوری رات عزت اور ریز دونوں نے بے سکونی میں گزاری تھی۔ عزت کو دوبارہ وہ امید نہیں دینا چاہتا تھا، پہلے بھی اسی نے اس کی محبت کو بڑھاوا دیا تھا۔ اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو شاید اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا۔ مجھے اور آبان کو ماما کے گھر چھوڑ دیں گے؟ جاتے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے اشوے نے تھرمس سے چائے کپ میں ڈالی۔ کیوں؟ خیریت؟ کپ فولڈ کرتے نیپکن سیٹ کیا۔ وہ ابھی بھی آفس کے لیے تیار ہو کے آیا تھا۔ ہاں جی، وہ بس ماما سے ملنا ہے۔ یاد آ رہی تھی ان کی۔ اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ اوکے، چھوڑ دوں گا، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ ناشتہ کر کے تیار ہونے میں اسے 15 منٹ لگے تھے۔ اتنی دیر میں آسام سوئے ہوئے آبان کو کندھے پر ڈالے، ایک ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا بیگ جس میں کپڑے اور جوتے تھے لیے گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اٹھا دیتے اسے۔ وہ کاٹن کے سادہ شلوار قمیض کے ساتھ بڑی سی چادر لیے اس کے پیچھے باہر نکلی۔ جگایا تھا، لیکن گہری نیند میں تھا، شاید جاگا ہی نہیں۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ کو تھوڑا پیچھے کرتے لٹایا، پھر اشوے کے لیے دروازہ کھولا۔ کتنا سرپرائز ہوگا؟ گاڑی میں بیٹھے وہ مسکرائی۔ ہاں، بالکل۔ شام تک وہیں رہیں گی یا اس سے پہلے واپس آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، وہیں رہوں گی، شام کو آپ پک کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ مین روڈ پہ آ چکے تھے۔ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ کس مساتے آبان نے گاڑی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، ہم میری ماما کے گھر جا رہے ہیں۔ اشوے نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا۔ اوکے، جب گھر آنے والا ہو مجھے جگا دیجئے گا۔ وہ پھر آنکھیں بند کر گیا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ کچھ دیر بعد آسام انہیں وہاں چھوڑ کے خود آفس چلا گیا۔ سامنے سے ریز آ رہا تھا، شاید وہ بھی جاب پہ جا رہا تھا۔ اوہ واو، اسے دیکھ کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی۔ السلام علیکم، ملتے ہوئے الگ سی خوشی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، اشوے بھی مسکرائی۔ السلام علیکم ریز، آبان کو خود کا اگنور ہونا اچھا نہیں لگا۔ وعلیکم السلام آبان، نیچے بیٹھتے اسے گود میں اٹھایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بال خراب کرتے وہ اندر آیا۔ اشوے بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ گھر آئی تھی۔ عجیب سی فیلنگز ہو رہی تھیں۔ حمید صاحب اور عائشہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کے دونوں کھڑے ہوئے۔ اوہ، یہ آج سورج کس طرف سے نکلا ہے؟
सूरज नहीं, चांद, रीज ने टुकड़ा लगाया। फिर वो दोनों से बारी बारी मिली। दरअसल वो खास मामा से मिलने आई थी। रीज कुछ देर बैठ के चला गया। और सुनाओ, सब ठीक है वहाँ? आसाम कैसा है? तुम्हारे साथ कैसा है? आयशा ने उससे पूछा। बाबा नाराज हो गए थे, फिर आबान फट से बोला। वो वैसे ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, फिर सुलह भी हो गई, जैसे आपकी और बाबा की होती है। आबान की चलती जुबान को बामुश्किल रोका था। सुलह हो गई? आबान ने हैरत से देखा। मेरे सामने तो आप लोग गले नहीं मिले। उस दिन जब अश्वी और आबान लड़े थे, तब आसाम ने उन दोनों को गले मिलवाया था और आबान उसी बात को लेके कह रहा था। ये किस पे गया है? शर्मिंदा होती अश्वे को आयशा ने बचाना चाहा, क्योंकि हमीद भी साथ ही बैठे थे उनके। अपने बाप पे। और किस पे? मुंह बसोरते आबान को घूरा, जो ये समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें कौन सी बात बुरी लगी है, गले मिलने वाली या आंसुला होने वाली। आप लोग गपशप लगाओ, मैं चलता हूँ। हमीद साहब उठ गए। मैं अकेला क्या करूंगा हमीद साहब? उसने शायद आयशा के मुंह से सुना था जो ऐसे कह रहा था। वो मुस्कुराए। अकेले कहाँ हैं? आपकी मामा भी है और आयशा भी। आपको बोर नहीं होने देंगी, उससे हाथ मिलाते कहा। मामा तो रोज होती हैं। आज आयशा से काम चला लूंगा। वैसे भी घर में बहुत बोर होता हूँ। यहाँ भी कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं दोस्त बनाता। वो अपसेट हुआ। मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी, उसे गोद में बिठाते आयशा ने कहा। हम लोग खूब मस्ती करेंगे और आज बिरयानी भी बनाएंगे, आबान ने कहा। ठीक है, आयशा ने हामी भरी। ओके, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग करो गपशप, गोश्त भिजवा दूंगा। फिर चले गए तो आबान और अश्वे और आयशा कुछ देर साथ बैठे बातें करते रहे। फिर अश्वे अपने रूम में चली आई, जहाँ अब कोई भी नहीं रहता था। कुछ चीजें गायब थीं, जो यकीनन रीज उड़ा ले गया था। कपड़ों की अलमारी खोली, उसका यूनिफॉर्म और उससे कितने न्यू जोड़े जो वैसे ही पड़े थे। मामा, मैं अपने कपड़े ले जाऊं? वहीं से आवाज लगाई। नहीं, ये मैंने देने थे किसी और को। वो आबान को उठाए अंदर आई। क्यों? ये तो मैंने बस एक दो बार ही पहने हैं। शादी के बाद पहले वाले कपड़े नहीं पहनते। उसे घूरते अलमारी बंद की, क्योंकि अगर वो देखती रही तो उठा के ले जाएगी। क्यों मामा? कुछ नहीं होता। कौन सा किसी को पता चलेगा? वो बस थी। क्यों, तुम्हारे शोहर के पास इतने पैसे नहीं हैं वो तुम्हें और कपड़े दिला दे? नहीं, मेरे बाबा के पास बहुत पैसे हैं। वो खामोशी से अश्वे को देख रहा था। हाँ, तो फिर बाबा से कहना इसे कपड़े ला दें। ओके आयशा, फिर से नाम लिया। आयशा की हंसी निकल गई। ये तुम्हें सही इंटरटेन करता होगा। हाँ जी, करता है। हम खूब मजे करते हैं घर में। अब वो अपने दूसरे ड्रॉर देख रही थी, फिर उसे कुछ याद आया। मामा, मेरे बाद यहाँ कौन कौन आया था? पहली बार कौन आया था, क्योंकि जो नोट उसने लिखा था वो वहां नहीं था। तुम्हारे बाबा। और जब आए थे तो दोबारा अपने कदमों पे। मामा, उसे लगा अगर आगे आयशा ने कुछ बोला तो वो पत्थर हो जाएगी। तुम्हारे रिसेप्शन पे उसी वजह से नहीं आ सके थे। वो खामोश नहीं हुई। और वो क्या समझ रही थी कि उसके माँ बाप उसे बोझ समझ के उतार चुके और अब उन्हें कोई परवाह नहीं है। उसके बाबा को हार्ट अटैक उसकी वजह से हुआ था। ये ख्याल ही जानलेवा था। उसके जाने के बाद इस घर में क्या क्या हुआ था वो नहीं जानती थी। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मामा? मैं आसाम को जानती तक नहीं थी और आप लोगों ने बस अपनी जिद की वजह से। उसे शिद्दत से रोना आया। मैं तो खुद चाहती थी तुम्हारी शादी महावीर से हो, लेकिन तुम्हारे बाबा को जाने क्यों आसाम से ही करनी थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं महावीर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उन्होंने बस पैसों के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। वो पैसों? आयशा का दिल धड़का। वजह तो उन्हें भी नहीं पता थी कि आखिर इतनी सख्ती से उन्होंने इस रिश्ते के लिए क्यों अमल किया था। हाँ, पैसों के लिए। उन्होंने असम के शायद पैसे देने थे। और मेरा निकाह उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, जब मैं छोटी थी। मुझे खुद समझ नहीं आता क्या हुआ था। उस वक्त सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि ऐसा लगा शायद कोई ख्वाब था। पास बैठा अबान सब कुछ सुन रहा था और अपने नन्हे से दिमाग में सेव कर रहा था। लेकिन उन्होंने तो मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। कैसे बताते? शर्मिंदगी ना होती? लहजे में तल्खी सी मिटाई। मैं महावीर से शादी करना चाहती थी। इस बात का आसाम को भी पता है। और वो कैसा रिएक्ट करते हैं आज आप सोच भी नहीं सकती मामा। मुझे वहां दूसरे दिन ही जाकर जो तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, आपको नहीं बता सकती। बेड पे बैठे वो अपने हाथों को देख रही थी। मैं ये सब आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि औलाद पे जबरदस्ती अपने फैसले थोपने की बजाय उनकी सुन लिया करें, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, ना कि वालदैन ने। अगर दिल ही राजी ना हो मामा, तो फिर कुछ भी मिल जाए, बहुत अच्छा, आला, बहुत सारी दौलत पैसा, कुछ भी आपके सुकून की वजह नहीं बन सकता। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उदास थी। अगर आप इस वक्त मेरा साथ देती तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। शायद आज मैं सुकून में होती। लेकिन हमारे यहाँ माएँ खुद ही बेटियों का गला घोंट देती हैं। वो तर्क बोल रही थी। फिर जब औलाद खुश ना हो तो उन्हें तकलीफ होती है। बेशक माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन औलाद को भी समझा करें।
यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने पिछला कुछ वक्त कैसे गुजारा है। आसाम ने मुझसे मोबाइल ले लिया था सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों से या महावीर से राब्ता ना कर सकूं। आप नहीं जानती कैसी कैसी तल्ख कलामी हुई है महावीर और आसाम के दरमियान। आज वो बोल रही थी और आयशा सुन रही थी। साथ में बैठा आबान दोनों को देख भी रहा था और सुन भी रहा था। मुझे माफ कर दो, आयशा ने आगे होकर उसे खुद से लगाया। आपको पता है, जब मैं छोटी थी और मेरी तबीयत खराब हो जाती थी बहुत, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कहती थी बस मामा मेरा हाथ पकड़ लें, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन आपने जिंदगी के इस सबसे बुरे वक्त में मेरा हाथ झटक दिया था। मेरा दिल करता था मैं चीखूं और बुलाऊं आपको कि देखें मैं किस तकलीफ में हूँ। उस उनके सीने से लगते वो बिलक बिलक के रो दी। कितने अरसे बाद उसे ये सहारा मिला था। माँ की गोद की जो ठंडक होती है वो कहीं से भी नहीं मिलती। चाहे तुम पूरी दुनिया का सुकून ले लो, जो सुकून माँ के सीने से सर लगा के मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अबान अशवे को देख के खुद रोना शुरू हो चुका था। मामा मत रोएं। छोटे से हाथों से उसका सर पीछे किया। मैं बाबा से बात करूंगा, वो आपको नहीं डांटेंगे। प्लीज मामा। वो सीधी हुई, फिर आंसू साफ किए। आयशा भी रो रही थी, लेकिन दिल का बोझ हल्का हो गया था। चुप करें आयशा। अबान ने अब आयशा को देखा। वो रोते में मुस्कुराई। ओके मेरी जान, उसे खुद में भेजा। मैं मामा को खुश रखूंगा। प्लीज आप ना रोएं। साथ में अशवे का हाथ थामा जो आंसू साफ कर रही थी। मुस्कुराई। आप बाबा से नाराज हो जाएं, मैं आपके साथ हूँ। ओके ठीक है, आज से आपके बाबा से बात नहीं करेंगे। ओके डन। अब बिरयानी बनाते हैं। फिर जबरदस्ती दोनों के मुंह अबान ने सीधे किए थे। बाबा को बुलाएं। किचन में आते अश्विन ने अबान को देखा। क्यों, हम नाराज हैं उनसे? हाँ, लेकिन वो खाना हमारे साथ खा लेंगे। रात को? अभी नहीं, पहले बना लें फिर। ओके, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं, आप जाके मूवी देखें। आप लगा दें। वो किचन में उसके पास खड़ा था। आयशा चावल निकाल रही थी। गोश्त बाबा ने भिजवाना था अभी। ओके। लहसुन और प्याज बास्केट में डाल के साथ ट्रे और छुरी उठाई। चलो, छोटी कटोरी आबान को पकड़ाई जिसमें लहसुन रखा था। फिर बाहर आके चैनल सर्च किए, कहीं भी अच्छी मूवी नहीं लगी थी। एक जगह पे लगी हुई थी, लेकिन वो आबान के देखने वाली नहीं थी। मामा, मोबाइल पे लगा दे। नहीं, एक मिनट में आती हूँ। फिर रीस के कमरे से लैपटॉप ले आई। नेटफ्लिक्स ओपन करते वहां पे उसे मूवी लगा के दी। ये ठीक है, साथ कुछ रिफ्रेशमेंट भी होती तो ज्यादा मजा आता। बेटा, ये घर है, सिनेमा हॉल नहीं। मैं ला देती हूँ, डांटो मत। आयशा किचन से बाहर निकल रही थी, सुनते वापस चली गई। फिर प्लेट में नीमको और लेस के 2 पैकेट लाके अबान को दिए। ये हुई ना आयशा वाली बात। आज वे दांत किचकिचा के रह गई। ये हैं वो कागजात जो अब हमारे हैं। ये न्यू तैयार किए हैं। 3-4 फाइल्स सेठ अली के सामने रखते दानिया कुर्सी खींच के बैठी। शाबाश, उन्होंने उठाए। वहां आसाम के साइन भी थे। बस अब यहाँ आप साइन कर दें, फिर वो सब कुछ आपका। जगह की निशानदेही करते वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पेन निकालते साइन कर दिए। 15-16 पेजेस पे साइन करते वो थके नहीं थे। अब से वो असलम यार का बेटा सड़क पे आ गया। वो हंसे थे, फिर हंसते ही चले गए। दूर बैठा किस्मत का परिंदा उन पे हंस रहा था। वाह भाई, आज तो पड़ोस से खुशबुएं आ रही हैं। परवशा बेगम अभी बाहर निकली थी, अकेली थी, इसलिए जवाब तो किसी ने देना नहीं था। सो खामोशी से बास्केट रख के वापिस आई। इज्जत मुंह तक दुपट्टा किए सोफे पे लेटी थी। सुबह से यही हाल था। तुम्हें हुआ क्या है, बताती क्यों नहीं हो? पलवशा को उसे देख के अब गुस्सा आया। कुछ नहीं हुआ। हुआ है कुछ तो। माँ हो तुम्हारी, इतना तो अंदाजा लगा सकती हूँ। बताओ मुझे। उसके पास आके बैठी। कुछ नहीं हुआ, सच में। फिर ये ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हुआ हो? मोरे, आप मेरी मदद करेंगी प्लीज? वो उठ के बैठी। हाँ, क्यों नहीं। उसके बाल सीधे किए, चेहरा अभी कमला गया था। प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिएगा तहम्मुल से। उनके हाथ थामे। हाँ बताओ, टेंशन हो रही है अब। मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझसे मोहब्बत तो होगी। जान हो मेरी, कुछ भी कर सकती हैं मेरे लिए। हाँ, सब कुछ। तो मैं री से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। बोल दिया, जो होना होगा हो जाएगा। पर वर्षा तो सत्ते में आ गई थी। तुम पागल वागल तो नहीं हो गया? प्लीज मोरे, आपको अपनी बेटी अजीज है या नाक? बेटी, दिल से आवाज आई थी, लेकिन लब खामोश रहे। बोले ना। उनकी खामोशी पे उसका दिल हो रहा था। तुम अजीज हो और मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। वही भाईजान से कुछ। इज्जत को यकीन नहीं आया अपने कानों पे, फिर तेजी से उनसे लिपटी। आयशा से तो परवशा अच्छी निकली थी, जिन्होंने अपनी बेटी का दिल देखा। नहीं, बल्कि इज्जत की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जिंदगी में कोई आसाम जैसा शख्स नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत खो देती।
फिर पलवशा ने कुतुब खान से कुछ बात की थी। पहले तो वो हैरान हुए इस बात पे कि पलवशा कह रही है वो शर्मिंदा थी, लेकिन अपनी बेटी का दिल नहीं उजाड़ सकती थी। वो जानती थी मोहब्बत के बिना जो बेसुकूनी होती है वो कैसी जानलेवा होती है। वो अपनी बेटी की जिंदगी में ऐसी बेसुकूनी नहीं फैलाना चाहती थी जो उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी में फैला दी थी। बेटे तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बेटियां अंदर ही अंदर घुलते खाक हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं लगने देती। उन्होंने सही वक्त पे अपनी बेटी का मान रखा था। सर, आपसे बाहर कोई हमीद साहब मिलने आए हैं। वो अभी मीटिंग से वापस आया जब इंटरकॉम पे उसे बताया गया। सामने लगी स्क्रीन पर नजर डालते उसे अंदर बुलवाने का कहा, फिर टेबल पे बिखरे पेपर सेट करके रखे। उनके आने तक टेबल नॉर्मल हालत में आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वो जीत के बराह रास्त वो बहुत दिनों बाद बात कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। आए, बैठे। बैठे बैठे सामने चेयर की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गए। कहें, कैसे आना हुआ? आसाम के माथे पे शिकने नमूदार हो रही थी। उनके हाथ में एक फाइल थी। ये तुम्हारी अमानत लौटाने आया था। फाइल उनके सामने रखी। इसमें वो तमाम चीजें हैं जो तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हारे लिए मुझे अमानत रखवाई थी। अब आपका कौन सा ड्रामा है? फाइल खोलते उन्हें तंजिया नजरों से देखा। वो खामोश बैठे रहे थे, जानते थे उनका कोई लफ्ज आसाम को सच्चाई नहीं समझा सकता जब तक कि वो खुद न देख ले। आसाम ने तमाम पेपर्स देखे। उसमें फैक्ट्री के कागजात थे, उनके घर के, उसके अलावा बैंक में मौजूद रकम जो अशरफ के नाम पे थी, उसके अलावा उसकी माँ के जेवरात की स्टेटमेंट्स, सब कुछ था। ये क्या है? वो हैरान हुआ। ये सब तुम्हारा है, जो अशवे के 18 साल के होने तक मेरा है, जो अशवे के 18 साल के होने तक मेरा था, फिर अशवे का, और अशवे तुम्हारी है। सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे वालिद साहब की अमानत। उसे आसान लफ्जों में समझाया। मुझे नहीं समझ आ रही, ये सब क्या है? घर के कागजात, फैक्ट्री के ये लेटर्स, ये सब तो मेरे पास भी है। आप आखिर क्या बताना चाह रहे हैं? ये ओरिजिनल कागजात हैं और जो तुम्हारे पास हैं वो सब इनकी कॉपी थे। ये लेटर है असफन साहब का, तुम खुद पढ़ लो। मैं कैसे मान लूं? तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब सच लिखा है। तुम्हारा दिल गवाही देगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। तपती दोपहर में वो बाइक पे सिर्फ उसकी अमानत उसे देने आए थे। आप ये सब मुझे पहले भी दे सकते थे। हाँ, दे सकता था, लेकिन मैंने मामला ठंडा होने का इंतजार किया, क्योंकि मैं अगर पहले बताता तो शायद तुम इसे मेरा कोई ड्रामा समझते, जैसे अभी समझ रहे हो, और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाते जैसे पहले पहुंचाया है। शिकवा किया। ओके, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो उठ गए। आगे आसाम ने कुछ समझना था। अल्लाह हाफिज। वो चले गए तो आसाम ने सारे पेपर्स आराम से देखे। उनमें जो लिखा था उससे मिलता जुलता उसके पास भी था, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी। जैसे कि यहाँ जो लेटर्स थे वो अलग थे, और ओरिजिनल हैंड राइटिंग में थे जो उसके पास थे वो अलग थे, और इनकी कॉपीज थी। वो लेटर्स वो पढ़ता जा रहा था और उसकी नसें फूलती जा रही थी। मतलब वो गलत सोचता आया था आज तक। अशफाक को तकलीफ देने की कोई वजह नहीं थी। हमीद साहब को ज़हनी टॉर्चर करना भी सब उसकी ही। उफ, बाल मुट्ठी में भेजते वो सोच रहा था। अगर ये सब सच था तो उसने अपनी आंखों से जो देखा था वो क्या था? मामा, जब बाबा आएंगे तो हम उन्हें ये सरप्राइज देंगे। वो अभी चावलों और गोश्त की तह बना बना रही थी। क्या? उसे देखा। वहां खड़े खड़े उसका दिल भी घबरा रहा था। बिरयानी का, जब वो हमें पिक करने आएंगे तो हम उन्हें अंदर बुला लेंगे और फिर उन्हें कहेंगे कि खाना खा लें, और जब वो बिरयानी देखेंगे तो उनके एक्सप्रेशन ऐसे होंगे। हाँ, दोनों हाथ हवा में बुलंद करते मुंह और आंखें पूरी खोली। वो तो जैसे छोटे से बच्चे हैं। नहीं, वो बच्चे नहीं हैं मेरी तरह, लेकिन जब उनका मूड अच्छा हो तो ऐसे सरप्राइज होते हैं। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ बाहर, गर्मी है यहाँ। उसका अपना गर्मी से बुरा हाल था और आबान वहां फजूल में खड़ा था। ओके, जल्दी आ जाएं आप भी। आपकी मामा तो नमाज पढ़ रही हैं। वो बाहर जाने लगा, फिर रुका। वैसे मामा, आपने कभी पढ़ी है नमाज? हाँ, पढ़ती हूँ। उसे कोफ्त हुई। कभी देखा तो नहीं। उफ, फिर खुद ही बाहर निकल आया। अशरफ के पास उसे हैरत से देखने का वक्त नहीं था। जल्दी से दम बंद करते उसके ऊपर हावन रखा। पत्थर की होने की वजह से वो काफी वजनी थी। दम के लिए यही इस्तेमाल करते थे। मगरिब खत्म होने वाली थी। वैसे तो आसाम 10 बजे आता था, जाने आज कितने बजे आता। मामा, आप भी पढ़ लिया करें नमाज। वो अभी आके पंखे के नीचे बैठी थी कि आबान ने उसे घूरा। मेरे बाप मत बनो। लेकिन बेटा तो हूं ना, नमाज पढ़ ले। ओके, पढ़ती हूँ, अभी हवा लगवा लूं। ठीक है। वो खामोश हो गया। उसके हाथ में अशवे का मोबाइल था, जिसमें पहले से मौजूद गेम कैंडी क्रश खेल रहा था। लम्हे बाद ही उठकर उसने नमाज पढ़ी थी। कितने दिन बाद, पता नहीं उस लड़की के अंदर नमाज की फिक्र कब पैदा होगी। आयशा गुस्से से उसी तरफ आ रही थी। उन्होंने आबान की बातें सुन ली थी शायद। ये घर नमाज नहीं पढ़ती? आबान के पास बैठते प्यार से पुचकारा।
मेरे ख्याल में तो नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं इन्हें, वो मजे से बता रहा था। अगर ऐसा करेगी तो फिर मुश्किलात ही आएगी ना। अल्लाह के लिए टाइम निकालेगी तो अल्लाह इसके लिए निकालेगा। फिर कहती है फलां फलां हुआ है। उन्हें सही मायनों में गुस्सा आ गया था। नमाज के बिना कैसे सुकून मिल सकता है? बच्ची नहीं हो, ना खुद पढ़ती हो, ना अपनी आने वाली नस्लों को सिखाओगी। अकल शऊर तो है ही नहीं, बस ड्रामे फिल्में दिखा लो इसे। मामा बस करें, क्यों इतनी कर रही हैं? वो रोहांसी हो गई। आबान के बच्चे, तुम्हें बाबा से सीधा करवाऊंगी, उसके पास बैठते चुटकी काटी। आयशा, आपकी बेटी में वाकई अकल नहीं है, उसे दर्द हुआ था। है? है? शर्म करो, बड़ी हूं आपसे। शर्म नहीं आती? हाँ, बाप को आज तक नहीं आई, आपको कैसे आएगी? आयशा अभी तक सलवातें सुना रही थी, इस चक्कर में वो दम उतारना भूल चुकी थी। चूल्हा मैं बंद करूंगी या तुम्हारा शोहर? आयशा किचन में गई तो उसकी अकल पे मातम किया। मामा, एक तो आप इतना प्रेशर डाल देती हैं बंदे पे कि सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। वो किलस के रह गई। बेटा, वो तुम में पहले ही नहीं है, तंज किया। उफ, ठीक है, आइंदा नहीं आऊंगी। हाँ, बस अब हमें गलत साबित करने के लिए नहीं आओगी। अच्छा मामा, सॉरी, आइंदा नमाज पढ़ूंगी, बल्कि इस आबान के बच्चे को सामने बिठा के पढ़ूंगी। असल फसाद की जड़ तो वही था ना। सामने बिठा के नहीं, बल्कि साथ पढ़ाया करो, इसे भी सिखाओ। ओके, जैसा आपका हुक्म। बात खत्म कर दी, लेकिन मामा फिर भी बड़बड़ाती रही। अब रायता बना लो, दम उन्होंने खुद खोला था। अच्छा, वो दही उठाने के लिए फ्रिज के पास आई, दही निकाला, और बस काम खराब। मामा, मैं नहीं करूंगी, बड़ी मुश्किल से वॉमिटिंग रोकी थी। क्यों? उसके पास आई, दही पकड़ के शेल्फ पे रखा। मुझसे नहीं होता, इतनी गंदी स्मेल लगती है इसकी। पहले तो नहीं लगती थी, वो उसे लिए बाहर आई। पहले भी हुआ ऐसा? कैसा? आयशा पास ही आबान बैठा था। कुछ नहीं, तुम चुप रहो। अब की बार आयशा ने उसे घूरा। ओके, कंधे उचकाए। जी, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तबीयत, वोमिटिंग, और मुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, आराम से बताया। और तुम मुझे अब बता रही हो? इतनी देर किचन में गर्मी में खड़ी रही हो। उन्हें अफसोस हुआ। नहीं खराब थी तबीयत, और आप भी तो काम करती है ना मेरे आने से। चलो कुछ रेस्ट हुआ आपका भी। हो जाएगा मेरा रेस्ट भी, बस तुम आराम करो, और किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। और अब जो मैं बताऊंगी वैसे ही करना है। खुशी से उसके माथे पे प्यार दिया। आबान खामोशी से सुन रहा था। ओके, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, गर्मी में नहीं बैठना। खाना 3 टाइम पेट भर के, और फ्रेश फ्रूट भी डेली। और सबसे पहले चेकअप करवाओ अपना। ओके, अश्विन ने सर हिलाया। आबान सुन रहा था। अब तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। मुझे सलाद के लिए सब चीजें यहीं ला दें, मैं बनाती हूँ। ओके, वो फिर उसे खीरे और टमाटर दे गई थी, जो अश्वे काटती रही। वो 8:30 बजे पहुंचा था। हमीद साहब के घर, वो घर पे ही मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सबसे पहले आबान उससे आके मिला था। उसके पीछे पीछे अश्वे थी, फिर आयशा। हमीद साहब अपने रूम में ही थे। फिर अश्वे ने सलाम किया, फिर आयशा ने। पहली बार ससुराल वाली फीलिंग्स आ रही थी आसाम को। फिर वो लोग अंदर आए। बाबा, आज बहुत कुछ हुआ है, घर जाके बताऊंगा। आबान उसके साथ घुस के बैठा। अश्वे ने पानी ला के दिया। आज मामा की सही वाली हुई। अच्छा, किस बात पे? खाली गिलास पकड़ाया। अश्वे आबान को घूर रही थी। सारी बातें डिटेल से, घर जाके बताऊंगा। यहाँ मामा ऐसे देखती रहेंगी। वो जा तो किचन की तरफ रही थी, लेकिन देख आबान को रही थी। वो भी गुस्से और बेबसी की मिलीजुली कैफियत से। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता ना कि आबान ये सब करने वाला है, तो वो उसे कभी भी अपने साथ ना लाती, बल्कि आसाम के साथ भेज देती। गिलास रखकर वापिस आई और आबान के दूसरी तरफ बैठी, फिर जरा नीचे होके उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अगर तुमने कुछ बताया ना, तो जान निकाल लूंगी तुम्हारी। बाबा, देखें, धमका रही हैं। फौरन से आसाम को बताया। कौन? वो आयशा की बात सुन रहा था, जो दूसरे सोफे पे बैठी थी। हाँ, कौन? कौन धमका रहा है मेरे बेटे को? अश्विन ने अनजान बनने का नाटक किया। आप? और कौन? आसाम वापिस आयशा की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। तुम घर चलो, सीधा करूंगी। अश्विन धीमी आवाज में गुर्राती वहां से उठ गई। फिर 10 बजे उन्होंने खाना खाया था। किसने बनाई है? बिरयानी प्लेट में निकालते हमीद ने पूछा। बिरयानी मामा ने बनाई है, हमीद साहब। नाना कहें, आसाम ने टोका, जबकि बाकी सब मुस्कुराए थे। नाना तो मेरी मामा के बाबा थे, वो कंफ्यूज था शायद। तो अश्वे भी मामा है आपकी, इस लिहाज से आपके नाना हुए। ठीक है बाबा। और आयशा को नानू कहूँ? आसाम को हैरत हुई, किसी और ने उसे अभी तक रोका क्यों नहीं था। तुम मुझे आयशा बुला सकते हो, तुम्हारे मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। वो साथ साथ खा भी रहे थे। खाना खा के कुछ ही देर वो लोग बैठे। अश्वे बाबा के साथ बातें कर रही थी और आयशा आसाम के साथ। आबान आसाम और अश्वे का मोबाइल उठाए कुछ इधर उधर शेयर कर रहा था। वहां से निकलते आसाम ने फ्रिज के ऊपर बड़ा पेन उठाया। ये वो पेन था जो उसने महावीर को दिया था। फिर वापसी पे डॉक्टर के पास गए थे।
प्रॉपर चेकअप के बाद पता चला था प्रेगनेंसी को 3 वीक हो चुके थे। आसाम बहुत खुश। अगर करीब आने की पाबंदी ना होती तो वो जरूर अश्वे को एक बार खुद में भेज देता। अश्वे ने बस नॉर्मल रिएक्ट किया था। आबान को फिलहाल कुछ पता नहीं था। बाबा आइसक्रीम खाते हैं। आबान इन दोनों की सीट पकड़े पीछे खड़ा था। इस वक्त अभी तो खाना खा के आए हो, अश्वे ने टोका। कोई नहीं, हमारे आबान के 2 पेट हैं। पीछे मुड़ते उसे आंख मारी। जी बिल्कुल मामा, एक में मैं खाना रखता हूँ और एक में आइसक्रीम। हा हा हा, बहुत हंसी आई। अश्विन ने दोनों को घूरा। आसाम का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी। बाबा आपके पास पैसे हैं? वो और आसाम दोनों बाहर निकले थे। हाँ क्यों? यार मामा को कपड़े तो ले दें। वहां आयशा, सॉरी नानू के घर जाके इतना तंग किया इन्होंने। वो वो खड़े वेट कर रहे थे। कपड़ों के लिए? वो हैरान हुआ। हाँ जी, नानू कहती कि मेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं जो इन्हें दिला दें। ओके ओके, वो उसकी बात समझ रहा था, यानी उन्होंने अश्वे को डांटा था। वो अपने पुराने कपड़े ले रही थी, वो उसे सब बता रहा था। उन्होंने लेने से मना क्यों किया? वो साथ साथ आइसक्रीम के पैकेट पकड़ रहा था। क्योंकि वो चाहती हैं किसी और लड़की को दें जिसकी शादी ना हुई हो। अपने दिमाग के मुताबिक उसे यही समझ आया था। अच्छा अच्छा। अब वो लोग गाड़ी के करीब आ चुके थे। जी, दरवाजा खोल के पहले आबान को अंदर बिठाया, फिर आइसक्रीम अश्वे को पकड़ाई और खुद बैठा। और बाबा, आपने बहना डाउनलोड करनी थी ना? उसे कुछ और याद आया। बस बेटा, इंस्टॉलेशन पे लगाई हुई है। अश्वे को देख के मुस्कुराहट छुपाई। ओह, कितना वक्त लगेगा? वो एक्साइटेड हुआ। 9 मंथ। गाड़ी सड़क पे डालते गियर चेंज किया। कहाँ हो रही है इंस्टॉल? आपके मामा के पेट में। अब कितने बदतमीज हैं। अश्विन होंको की तरह उनकी बातें सुन रही थी। बेबसी से बोली, बस इतना, उसके साथ एक और भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। आसाम, बस वो रो देने को थी। जी जी, गाड़ी मोड़ते सर खम किया। आपको कब शर्म आएगी? मामा, आपको भी तो नहीं आती। आबान फट से बोला। नानू कह रही थी ऐसा। उसके तिल मिलाने पे जल्दी से वजाहत दी। मुझे शर्म तब आएगी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। आबान फुल मजे में था। जिस तरह की आप हरकतें करते हैं वो छोटे बच्चे नहीं करते, बड़े ही करते हैं। अच्छा, हैरानगी से देखा। सारे रास्ते वो और आबान अश्वे को तंग करते आए थे। तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, बस एक मेन गेट खुला रखना है। अली और दानिया साइन होते ही वहां आ चुके थे। इस घर पे कब्जा करना कोई छोटी बात नहीं थी। इस हवेली पे नजर बरसों से थी। इसकी जवानी के दिन थे जब वो यहाँ गेट के सामने बैठा करता था। फिर खुद ही उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। बाबा, हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, बस उनका इंतजार है। वो आसाम का इंतजार कर रहे थे। उनके ख्याल में आबान और अश्वे घर होंगे, वो लोग आसानी से कब्जा कर सकते थे अगर वो दोनों घर होते। पर चलो, कुछ नहीं होता, वो अभी कर सकते थे। गेट के पास आते फुल जोश में नजर आ रहे थे। इतने में उन्हें बाहर गाड़ी रुकती नजर आई, साथ हॉर्न भी बज रहा था। लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोलना था। आसाम जो पीछे से ही हॉर्न बजाता आ रहा था, ना खुलने पे बाहर निकला। गार्ड वहां मौजूद नहीं था, शायद कहीं गया था। यही सोचकर अपनी चाबी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने दानिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। आइए आइए, अली उसे देखते ही बोला। अली को देख के हैरत का झटका लगा था आसाम को। कहीं तो देखा था इसे पहले। आइए नहीं, जाइए, क्योंकि अब ये हमारा घर है। फाइल से खुद को हवा देते वो हंसी। ये आसाम मेंशन नहीं रहा अब, डियर आसाम। ये घर अब सेठ अली का है और मेरा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पीछे हटो। आगे होके गेट खोला, फिर बाहर जाके गाड़ी में बैठा। आबान सो चुका था। अश्विन ने इतना टाइम लगाने की वजह पूछी। आसाम खामोश रहा, फिर गाड़ी अंदर लेके आया। सेठ अली और दानिया गुस्से और तय से उसे देख रहे थे। तुम यहाँ रह सकते हो कुछ दिन, लेकिन ये घर अब तुम्हारा नहीं है। जो ही बाहर निकला, दानिया दोबारा सामने आई। मेरा दिमाग खराब मत करो, बहुत बुरा होगा। आबान को कंधे पे डालते अश्वे का हाथ पकड़ा। दरवाजे बंद हैं। सेठ अली ने हाँक लगाई। आसाम दरवाजे के करीब गया था, दरवाजा खुद ही खुल गया। दानिया का मुंह खुला। तुम्हारा बाप भी इस घर के दरवाजे मुझ पे बंद नहीं कर सकता। वापस मुड़ते उसे देखा। अश्वे परेशानी से सब देख रही थी। आबान को उसके रूम में लिटा के दरवाजा लॉक किया, फिर किसी को कॉल करते राहदारी में बने एक शेल्फ के पीछे वाज उठाया। उसके अंदर से छोटी सी पिस्टल निकाली और अपनी पॉकेट में रखी। अश्वे, आप कमरे में जाएं, मैं आता हूँ। अश्वे जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी उसे देखा। नहीं, मैं आपके साथ आऊंगी। अजीब सा खौफ था। मैंने आपसे कहा है कमरे में जाएं, जब तक मैं ना कहूं बाहर नहीं आना। उसकी आवाज ऊंची हुई। अश्वे पीछे मुड़ी और अपने कमरे में बंद हो गई। आसाम नीचे आया, अपनी अंदरूनी जेब से पेन निकाल के सामने वाली पॉकेट में रखा, फिर सोफे पर बैठ गया। वो दोनों उसके सामने बैठे हुए थे। शुरू करें अपनी बकवास। दिमाग की रगें तन रही थी। बकवास नहीं, सच।
और ये जो तुम अपनी जर खरीद बीवी को कमरे में भेज रहे हो ना, उसे भी बाहर निकालो। जर खरीद पे आसाम की आंखें भी सुर्ख हुई, लेकिन वो जब्त करके बैठा रहा। ये फाइल है इस घर की, जिसके मुताबिक तुम अपना ये घर मेरे नाम कर चुके हो। आसाम ने उठा के देखी, फिर वापस फेंकी। पहली बात, ये घर मेरे नाम नहीं है। और दूसरी बात, जो कागजात तुम्हारे पास हैं, वो फेक हैं। फेक कैसे हो सकते हैं आसाम शेख? ये मैंने खुद तुम्हारे लॉकर से निकाले हैं, अपने इन हाथों से। हाथ हवा में लहराए वो बहुत एक्साइटेड नजर आ रही थी। जी, मैं भी उन्हीं कागजात को फेक कह रहा हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब नकली है। तुम झूठ बोल लो, कोई बात नहीं, ये लीगली तौर पर अब हमारा घर है। तुम चाहो तो यहाँ एक दिन रुक सकते हो, वरना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो। सेठ अली खड़ा हुआ। बैठ जाएं अभी, आपको कुछ दिखाना है, वो सर्द आवाज में कहता सीधा हुआ। आंखें हनूर सुर्ख थी, अंदाज सपाट था। चंद सेकंड में बाहर बाइक रुकी थी, फिर हमीद साहब अंदर आए। ओह वाओ, अली अली को देख के उन्हें हैरत हुई। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई थी। आप जानते हैं इन्हें? हैरानगी से देखा। हाँ, हम दोनों तुम्हारे बाबा के पास काम करते थे। ये गार्ड था, और इस कमीने को मैं लेके आया था। इसने मेरी ही रस्सियां काट दी। अली को गुस्सा आया हमीद को देख के। मतलब समझा नहीं मैं। तुम्हें समझ भी कैसे आएगा? अली हमीद साहब की तरफ बढ़ा। तुम्हारी वजह से मैं इस जगह से कंगाल होके गया था। आज देख, तेरी बेटी को नंगे सर यहाँ से निकालूंगा। अपनी जुबान को लगाम दो। आसाम उठते उसके करीब आया। मेरी जुबान को लगाम देने से क्या होगा? सच्चाई बदलेगी तो नहीं? अली पीछे हुआ। सच्चाई तुम्हें हमीद साहब बताएंगे। फिर हमीद ने आसाम को देखा। ये फाइल्स देखने के बाद और कौन सी सच्चाई रह जाएगी मिस्टर आसाम? दानिया कब से खामोश थी। इन फाइल्स में सब झूठ है, और ये घर मेरे नहीं, अशवे के नाम पे है। आसाम ने धमाका किया था। तुम अब झूठ बोल रहे हो, अली भड़का। नहीं, वो सच बोल रहा है, हमीद साहब बोले। ये घर अशवे के 18 साल के होने तक मेरे नाम था, फिर ये घर अशवे के नाम हुआ। लेकिन तुमने ये घर अपने नाम क्यों करवाया? मुझे समझ नहीं आई। उन्हें अली वाले मामले का कुछ मालूम नहीं था। तुम भौंक रहे हो आज भी, जैसे उस वक्त भौंके थे। मैं कुत्ता हूं ना, जो उस वक्त असफन और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया, इस घर के लिए, इस दौलत के लिए। और अब तुम कह रहे हो? आसाम का वजूद साकित हुआ। मतलब उसने बाबा को कत्ल उसने किया था? रुको। इतनी आहिस्ता आवाज थी कि बामुश्किल ही वो लोग सुन पाए। हमीद साहब ने मेरी मामा के साथ? नहीं, वो सब मैंने किया था। वो सब मान रहा था। वो सब मैंने किया था ताकि मैं आराम से इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊं। पर तुम्हारे उस जलील बाप ने सब कुछ इस कमीने को दे दिया। इतनी बड़ी सच्चाई आज आसाम को पता चली थी। असल में तो वो बेवकूफ बना था। इसे कहते हैं कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। वो हंसा। और मैं सजा किसे दे रहा था? बेसाख्ता उसका हाथ पॉकेट की तरफ गया, गन निकाली। 3 गोलियां अली के सीने में बेबस थी। अचानक इस अवतार के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अश्वे जो कब से अंदर बैठी खौफ से कांप रही थी। बाहर से आती ऊंची ऊंची आवाजें उसका दिल हौला रही थी। गोली की आवाज पे उसकी चीख निकली थी। आगे होकर आसाम ने पूरी गन उस पर खाली की थी। बाबा! दानिया मरते हुए बाप को देख के चिल्लाई थी। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ चुकी थी, जो आसाम शेख को हिरासत में लेते उनके घर को सील कर गई थी, क्योंकि इस घर के कागजात को प्रॉपर चेक किया जाना था। लेकिन आसाम, वो अब अश्वे से जुदा होने वाला था क्या? कत्ल करते उसे 2 लोगों ने देखा था। अश्वे और आबान हमीद साहब के साथ वापिस उन्हीं के घर आ गए थे, जबकि आसाम हवालात में था। क्या मैं अपने वकील को कॉल कर सकता हूँ? कॉरिडोर में चलते उसने साथ चलते इंस्पेक्टर से पूछा। जी जी सर, क्यों नहीं, वो आसाम को पहले से जानते थे। मेरे मोबाइल में है नंबर। उसने अपना मोबाइल दिया तो आसाम ने टोका। फिर आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठने का इशारा करते इंस्पेक्टर ने कागजात निकाले। आसाम बैठ गया। मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। फिर उसने वो सीक्रेट कैमरा इंस्पेक्टर के हवाले किया। उन्होंने फौरन उसे लैपटॉप से कनेक्ट किया था। वो सब देखते रहे। सब कुछ मौजूद था, कत्ल भी, और जो जो वहां बातें हुई थी। इसमें तो ये भी साबित होता है कि कत्ल आपने किया है। जी सर, मैं अपने हिस्से की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो मुजरिम है, इन्हें खुलेआम नहीं घूमने दे सकता। ठीक है, वैसे अगर आप अपने केस में चाहे तो दियत की ऑफर भी कर सकते हैं इन्हें। आप कन्विंस कीजिएगा। ओके, आई विल ट्राई। लेकिन आपको आपके जुर्म की सजा भी मिलेगी। जी, मैं जानता हूँ। वो कुछ डिप्रेस था। सूरत हाल इस तरह खराब हो जाएगी एकदम से किसी को भी नहीं पता था। वो कितने खुश थे, नजर ही लग गई थी। अशवे और आबान की अलग टेंशन थी। कुछ देर बाद वहां दानिया आई थी अपने वकील के साथ। आसाम के आईब्रो तने। मुझे कंप्लेंट करनी है अपने बाप के कत्ल की।
कुर्सी घसीट के बैठते वो आसाम को देख रही थी। उसका अंदाज ऐसा था कि आसाम ने बामुश्किल सब्र के घूंट पिए थे। साहब का मोबाइल ला के दो, कुछ लिखकर उसने आसाम की तरफ बढ़ाया, फिर पास खड़ी कांस्टेबल से कहा, यस सर। वो बाहर चली गई। जी बीबी, शुरू करें। आप कंप्लेंट लिखें। वो तो मैं लिख लूं, लेकिन इससे पहले आपको एक ऑफर करता हूँ। आसाम पेपर पढ़ रहा था। मुझे किसी किस्म की ऑफर नहीं चाहिए। मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। देखें बीबी, अगर आप कत्ल के बदले कत्ल चाहती हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आपने रिश्वत ले ली होगी इनसे। जुबान संभाल के बात कीजिए। अगर कत्ल के बदले कत्ल करना है तो फिर ये किसी भी सजा के मुस्तहिक नहीं होते। उन्होंने अपने बाप के कातिल को मारा है। अब मुस्कुराने की बारी आसाम की थी। आप मुझे कानून मत सिखाएं। अगर कत्ल बाप का किया है तो बेटा सजा क्यों दे रहा है? कानून देना। जैसे आपकी मर्जी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो कहा है करें। बीबी, पहले तो ये कागजात कोर्ट को पेश किए जाएंगे। इनकी तहकीक वो अपने मुताबिक करेंगे, फिर आगे का फैसला होगा। अगर आप यहाँ सजा की मुस्तहिक हुई तो जेल के लिए आपको भी आना पड़ेगा। और एक बात, इंस्पेक्टर आगे हुआ, मुजरिम कंप्लेंट नहीं करवा सकता। मेरा वकील करवाएगा कंप्लेंट। जी मैडम, उन्होंने देखा ही नहीं है ना सब। हमीद साहब करवाएंगे। वो चिल्ला उठी। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। आसाम ने कंधे उचकाए, क्योंकि वो जानता था हमीद साहब कभी भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप तहम्मुल से बात सुन ले मेरी। कंप्लेंट लिखना और करवाना आसान है। उसके बाद जो होगा वो आपके लिए आसाम साहब से कहीं ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। दूसरी सूरत यह है कि आप खून बहा यानी दियत कर लें। हरगिज नहीं। मैं इसे फांसी के फंदे तक लेके जाऊंगी। ठीक है, इन्हें हवालात में रखो 24 घंटे। मैं इनके पेपर्स कोर्ट में पेश करता हूँ। हवलदार को इशारा किया। मुझे क्यों? वो खड़ी हुई। क्योंकि आपने चोरी की है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ये रहा। पेन सामने लहराया। इसमें आप और आपके वालिद साहब दोनों ने खुद अपने जुर्म कबूल किए हैं। ये काफी होगा मेरे ख्याल में। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें आसाम शेख। वो भूल चुकी थी कि कहाँ खड़ी है। मैडम, खामोशी से अंदर जाएं। ये धमकियां आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। उसके जाने के बाद वो आसाम की तरफ घूमा। आपको भी 24 घंटों के लिए जेल में रखा जाएगा, फिर उसके बाद जो कोर्ट का फैसला हुआ। ओके, अभी आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। मोबाइल उसे पकड़ाया। फिर आसाम ने रफाकत को कॉल करके सारा मामला समझाया था। वो अभी आने के लिए तैयार था, लेकिन आसाम ने उसे सुबह आने का कहा। वो रात आसाम ने हवालात में गुजारी थी। उन्हें कुछ पता ही नहीं था साथ वाले घर में हुआ क्या है। अगले दिन पुलवशा बेगम खुद आयशा से मिलने आई थी। वहां अशवे को देख के उन्हें हैरत हुई। ये कब आई है? हाल चाल पूछने के बाद पूछा। कल सुबह, आयशा ने जवाब दिया। उन्हें लग रहा था जैसे वो टोह लेने आई हूँ कि अशवे किस हालत में है। रहने के लिए आई है? हाँ, कुछ दिन रुकेगी। अच्छा अच्छा, शोहर छोड़ के गया है? नहीं, हमीद साहब लेके आए हैं। अच्छा, चलो सही है। माँ बाप से मिल लेगी तो। आपको कुछ काम था? उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अशफे की भी तबीयत ठीक नहीं थी। आबान डीस के साथ बाहर गया था। हमीद साहब थाने आसाम के लिए खाना लेके गए थे। नहीं, मैं बस ऐसे ही। उन्हें बात करने में इतनी दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे शुरू करें। ऊपर से आयशा का सपाट अंदाज। मामा, अशवे को थाने बुलाया है। रीस अपनी जोन में अंदर आया था। थाने? खैरियत है? पलवशा के कान खड़े हुए। आयशा रीस को देख के रह गई। मजबूरन आयशा को सारी बात बतानी पड़ी। पता नहीं कैसे लोग दूसरों को तकलीफ दे लेते हैं। उनके दुख में शरीक होना चाहा। तुम अशवे से कहो तैयार हो जाए, मैं भी साथ चलूंगी। तबीयत नहीं सही उसकी। हाय, क्या हुआ उसकी तबीयत को? कुछ नहीं, बस उम्मीद से है ना, तो इसीलिए। ये बताते हुए आयशा के दिल में ठंड पड़ी थी। मुबारक हो फिर तो। शुक्रिया। उतनी देर में अशवे चादर लिए बाहर आई। आपा, फिर हम चलते हैं। आप अगर बैठना चाहें तो। मैं अकेली क्या करूंगी? मैं भी चलती हूँ घर। इज्जत अकेली है। रीस टैक्सी लेने के लिए बाहर निकल रहा था। इज्जत के नाम पे होक सी उठी। इस मुतालिक फिलहाल कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। उसका राबता दोबारा इज्जत से हुआ ही नहीं था। थोड़ी देर में टैक्सी आई तो अशवे और आयशा चली गईं। रीस और आबान घर ही थे। वहां अशवे की आसाम से मुलाकात भी हुई थी। आसाम के वकील ने अशवे से सारे मामलात क्लियर किए थे। हमीद ने तमाम बातें जो उन्हें मालूम थीं बता दी। उनके कागजात कोर्ट में जमा करवा दिए गए थे। 5 तारीख को पहली पेशी थी। उन्हें आने में देर हो गई थी। आज पहली हेयरिंग थी। सामने ही हमीद साहब खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अंदर पहुंचने तक वो उन्हें मेन बातें समझाते गए। कोर्ट के अंदर बहुत कम लोग थे। वो तुमसे पूछेंगे फाइल्स के बारे में। तुमने कहना है कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम है। बस एक जो न्यू फैक्ट्री है वो आसाम के नाम थी।
ٹھیک ہے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ چل رہے تھے، اور نروس بالکل بھی نہیں ہونا۔ بابا، وہ آسام کو چھوڑ تو دیں گے نا؟ وہ خوفزدہ تھی۔ ہاں ہاں، وہ ابھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا، اسے تسلی دی۔ بس ہمیں دانیہ کو دیت کے لیے کنونس کرنا ہوگا۔ وہ نہ مانی تو؟ عائشہ نے انہیں دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ مان نہیں رہی۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی جج صاحب بیٹھے تھے۔ ایک طرف آسام کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف دانیہ۔ دانیہ پہ چوری کا کیس تھا جو پہلے حل کرنا تھا، اسی کے لیے آج ہیئرنگ تھی۔ آسام کو دیکھ کے دل دھڑکا۔ وہ پریشان نہیں تھا تو اسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گہری سانس لیتے دوسری طرف مڑی۔ بیٹھیے، کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ میں سے اشوے کون ہے؟ جج نے پوچھا۔ اشوے نے گردن ہلائی۔ اوکے، یہاں آئیں، آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں، بس آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ وٹنس باکس کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے۔ پروسیکیوٹر نے اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن رکھا۔ ہاتھ رکھ کے کہیں، جو کہیں گی سچ کہیں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گی۔ اس نے ہاتھ رکھتے دہرایا، جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ پروسیکیوٹر نے ساتھ کھڑے آفیسر کو قرآن پکڑایا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہاں چند لوگ ہی موجود تھے جو انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ آسام شیخ کو جانتی ہیں؟ جی، وہ میرے شوہر ہیں۔ آپ کے پاس نکاح نامہ موجود ہے؟ اس نے بابا کو دیکھا، کیونکہ اس کے پاس نہیں تھا۔ حمید نے ہاں کا اشارہ دیا۔ جی، موجود ہے۔ اوکے، کیا آپ دکھا سکتی ہیں؟ یہ رہی فائل۔ ڈیفینڈنٹ وکیل نے نکاح نامے والی فائل نکال کے جج صاحب کے ٹیبل پہ رکھی، جو انہوں نے اٹھا کے دیکھی۔ ٹھیک ہے، آپ شروع کریں۔ دیکھنے کے بعد پروسیکیوٹر کو اشارہ کیا۔ تو جی، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ فائل جج صاحب سے لی۔ 7 ماہ، اشوے نے جواب دیا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ 7 ماہ میں؟ شادی سے پہلے ہی بچے؟ وہ ہنسا۔ جی نہیں سر، وہ میرا نہیں، میرے شوہر یعنی آسام شیخ کا بیٹا ہے، پہلی وائف سے۔ اشوے نے تحمل سے جواب دیا۔ اسے بابا نے پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ کچھ بھی کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اس نے ناول بھی تو پڑھا تھا، نمر، جس میں حنین یوسف سے کئی طرح کے سوالات کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا بیٹا کیا نام ہے؟ آبان؟ ہاں، آبان ان کی پہلی وائف سے ہے، تو انہوں نے آپ کو اس کی سیکنڈ مدر یعنی دیکھ بھال کے لیے اپنے نکاح میں لیا ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آسام نے انہیں گھورا۔ آپ خاموش رہیں، پروسیکیوٹر نے اسے ٹوکا۔ آپ مدعے سے ہٹ کے سوال کر رہے ہیں۔ ڈیفینڈنٹ وکیل نے اعتراض کیا۔ رکیں رکیں، ہم اسی طرف آ رہے ہیں۔ جج صاحب، یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر انہوں نے اشوے سے دوسری شادی کی ہے تو یہ ان پیپرز کے مطابق تمام جائیداد ان کی شادی سے پہلے ہی ان کے نام کیوں کر دی گئی؟ جبکہ اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کے بعد یہ سب کر سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیپرز جعلی ہیں، اور جو یہ والے پیپرز ہیں میری موکلہ کے پاس ہیں وہی اصلی ہیں، اور وہی اس جائیداد کی اصل مالکن ہیں۔ وہ بول رہا تھا۔ آبجیکشن! آرڈر آرڈر! اعتراض ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اگر یہ اصلی مالکن ہیں بھی تو پھر ان کے تعلقات آسام صاحب سے پہلے ہی تھے۔ اب وہ تعلقات کیسے تھے کہ جائیداد ان کے نام کر دی گئی؟ اشوے کا چہرہ ہتک سے سرخ پڑ رہا تھا۔ بکواس بند کرو! آسام اپنی جگہ سے اٹھا۔ جج صاحب، میری درخواست ہے، آپ مس دانیہ کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے کیس ختم کر دیں۔ آبجیکشن مائی لارڈ! مجھے میرے موکل کی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جی، بالکل ملے گا۔ کہیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ڈیفینڈنٹ نے آسام کو دوبارہ کرسی پہ بٹھایا۔ سر، میں دانیہ صاحبہ کو بلانا چاہوں گا۔ جی، مس دانیہ کو بلایا گیا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ ویسے ہی اس کے سامنے قرآن رکھا گیا۔ آپ آسام شیخ کو کب سے جانتی ہیں؟ جی، میں ان کو کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ کس تعلق سے؟ اگلا سوال۔ میرے بابا ان کے بابا کے گارڈ تھے، اس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بے دہانی میں بول گئی۔ سر، کیس تو حل ہو گیا ہے۔ کیسے؟ پروسیکیوٹر حیران ہوتے کھڑا ہوا۔ ایسے کہ جب اس کے والد صاحب اسفن یار کے گارڈ تھے تو یہ حویلی اگر ان کی ہوتی تو وہ یہاں گارڈ کے حساب سے تو نہ رہ رہے ہوتے۔ اگر باپ گارڈ ہے تو بیٹی مالکن کیسے ہو گئی؟ یہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ کورٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہیئرنگ 28 تاریخ کو ہوگی۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ جج صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ تمہیں تو دیکھ لوں گا میں۔ حوالدار دانیہ اور آسام دونوں کو لے گئے۔ ماما، بابا نہیں آئے نا؟ آبان اسے شدت سے یاد کر رہا تھا۔ نہیں، لیکن جلد آ جائیں گے۔ حمید صاحب نے اسے گود میں اٹھایا۔ نانا، میں انہیں مس کرتا ہوں۔ آپ انہیں بتاتے۔ وہ رونے لگا تھا۔ وہ آ جائیں گے۔ عائشہ نے آگے ہو کے اسے پکڑا۔ یہاں ہم سب ساتھ ہیں۔ سب تو اب بابا کو مس مت کریں۔ وہ ٹھیک ہیں، کام کر رہے ہیں، فری ہوں گے تو واپس آ جائیں گے۔ کب فری ہوں گے؟ ماما، آپ لے جائیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کل چلیں گے۔ اشوے بھی اداس تھی۔
میں بابا کے بغیر نہیں رہ پا رہا ہوں نانو، وہ عائشہ سے لپٹا۔ صبر کرو میرے پیارے بیٹے، اسے پیار کرتے خود میں بھیجا۔ ہم لوگ ابھی باہر گھومنے چلیں گے، ابان ٹھیک ہو جائے گا۔ ریت بھی وہیں تھا۔ نہیں ماموں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اداس ہوں اور بابا کے بنا مزہ نہیں آتا۔ بابا کے بنا مزہ تو نہیں آتا، لیکن ہمیں اداس بھی تو نہیں ہونا ہے نا۔ خود ہی ہو جاتا ہوں یار، بابا کی جب یاد آتی ہے۔ ویسے ماما، پہلے تو بابا مجھے بلاتے تھے، اس بار آپ کو کیوں بلایا؟ مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اسی لیے کہ اب میری باری تھی، نیکسٹ آپ کی۔ اوکے، کل ہم ساتھ ہی چلیں گے، اسے تسلی ہوئی۔ ساتھ ہی چلیں گے؟ پتہ نہیں اتنے دن بعد کیوں ہیرنگ کی ڈیٹ دی ہے۔ کیا تھا، جلدی رکھ لیتے، بیچارہ بچہ کتنا پریشان ہے، عائشہ نے شکوہ کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ اور پھر وہ دن گزر ہی گئے۔ آسام کے گھر کو باعزت بری کر دیا گیا۔ دانیہ کے کاغذات کو جعلی قرار دیتے تمام چیزیں اشوے کو ہی سونپ دی گئی تھیں۔ دانیہ کو عمر قید کے ساتھ ساتھ کروڑوں کا جرمانہ بھی ہوا تھا، کیونکہ اس نے کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے جائیداد پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ آسام ابھی جیل میں تھا۔ اگر دانیہ دیت کے لیے نہ مانی تو اسے بھی 25 سال عمر قید ہو سکتی تھی۔ اگر دانیہ نہیں مان رہی دیت کے لیے تو مقتول کے اور کوئی والی وارث بھی تو ہوں گے نا۔ وکیل صاحب اس وقت رفاقت کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان کی بیوی وفات ہو چکی ہے، پھر بھی میں جاؤں گا اس کے گھر۔ جی، جتنا جلدی ہو سکے، اس ہیئرنگ سے پہلے ہمیں دیت کے لیے کچھ کرنا ہے، نہیں تو پھر 25 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بس ابھی نکلتا ہوں۔ بلکہ ایک کام کریں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اگر کوئی ملے تو ہم ان سے پیپر ورک کروا سکیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں کچھ دیر میں وہاں سے نکلے تھے۔ سیٹھ علی کے علاقے تک پہنچنے کے لیے انہیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ یہ سیٹھ علی کا گھر کہاں ملے گا؟ ایک عورت جو بچے کو اٹھائے کہیں سے آ رہی تھی اس سے پوچھا۔ جی، ان کا گھر تو نہیں، حویلی ہے، وہ سامنے جو سرخ رنگ کی دیواریں نظر آ رہی ہیں وہ، اس نے اشارہ کرتے بتایا۔ اوکے شکریہ، اللہ کرے کوئی تو مل جائے جو ہماری مدد کرے۔ حویلی کے سامنے گاڑی روکتے وہ اترے۔ جی، مسٹر علی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ صاحب، ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ اوہ، افسوس کا ناٹک کیا۔ ان کے گھر میں کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی صاحب، ان کی بیوی ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اندر کی طرف بڑھے۔ صاحب آپ یہاں رکیں، میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ رکے۔ بات سنو، وکیل نے گارڈ کو روکا۔ جی، وہ رکا۔ اندر جا کے کہنا کہ علی صاحب کے وکیل آئے ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، پھر کچھ دیر بعد واپس آیا اور انہیں اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاتے انتظار کا کہہ کے وہ خود چلا گیا۔ شکر ہے، بس وہ لالچی عورت ہو، آسانی ہوگی ہمارے لیے۔ السلام علیکم، ایک 25-26 سال کی نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، وہ کھڑے ہوئے۔ بیٹھے بیٹھے انہیں اشارہ کرتے وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ وہ دراصل ہم لوگ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جی کہیں، وہ سمجھدار لگ رہی تھی اپنے حلیے سے، ایک پروکار لڑکی۔ آپ جانتی ہوں گی علی صاحب کا قتل ہوا ہے، رفاقت نے بات شروع کی۔ جی جانتی ہوں، اور مجھے کسی کی کوئی کمپلین نہیں کرنی، اور نہ ہی مجھے کسی پہ شک ہے۔ شاید پہلے بھی ان کے پاس پولیس آ چکی تھی، اس لیے اکتاہٹ سے جواب دیا تھا۔ نہیں، ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایکچولی ہم آپ سے کچھ اور بات کرنے لگے ہیں، بس پلیز تحمل سے ہماری بات سن لیجئے گا۔ اس کے چہرے سے کسی قسم کی حیرانگی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ قاتل کی طرف سے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ قاتل کو دیت لے کے معاف کر دیں۔ اوہ، اب اس کے ہونٹ سکڑے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ جی، سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا اور میرا مذاق کا رشتہ تو ہے نہیں۔ اوکے، پلیز آپ یہ یہاں سائن کر دیں، اور آپ کو چیک لکھ کے دیتا ہوں۔ سائن کروا کے دیت کی رقم چیک پہ لکھ کے دی، جو پاکستانی روپے کے مطابق آج کے دور میں 52,43,184 تھے۔ مکمل تصدیق کے بعد انہیں کل کورٹ آنے کی درخواست بھی کی تھی، ساتھ اپنا نکاح نامہ بھی لے کے آنے کا کہا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے آدھے گھنٹے بعد واپس آ گئے تھے۔ ان کا کام ہو گیا تھا۔ اب دانیہ کی کیا مجال کہ وہ آسام کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ چلیں اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو فائنلی اسے دیت مل گئی ہے اور اب وہ وہاں سے تو رہا ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے آگے کے معاملات کیسے سیٹ ہوتے ہیں، اور عزت کی بھی معاملات سیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو ابھی اس کا دیکھتے ہیں آگے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ چلیے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آ جاؤں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔